Hello children, welcome to your English class. Children, I hope you all are watching videos because that is very important for you. Everything is explained in the video, the chapter, the exercises are explained in videos only. Online classes are there for clearing your doubts. जो छोटे मोटे आपके जो डाउट्स हैं उसको हम ब्रीफली चैप्टर को एक्सप्लेन करते हैं और एक्सरसाइज की डाउट्स को क्लियर करते हैं, but we do not explain everything in detail in online class. So I would suggest you must watch the videos regularly. आपको रेगुलरली वीडियोस देखना है, आपको स्किप नहीं करना है. So welcome to this class of your English. You know that we are doing chapter 8 of your English course book, main course book. We have completed reading, explanation and some of the exercises, especially the comprehension A, B and C we have done. So it's time to proceed to the next exercise. But you know that before starting any new exercise, I revise what we have done till date related to that particular chapter. तो हम चैप्टर 8 कर रहे थे, तो चैप्टर 8 में हमने अब तक कितना कर लिया है उसका एक हम क्विक रिवीजन करेंगे. ओके, आई टोल्ड यू द स्टोरी ऑफ द चैप्टर. मैं आपको बता चुकी हूँ, इसलिए ब्रीफली एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो स्टोरी थी ब्लैकी की, ये क्या स्टोरी थी, और जो एक्सरसाइज है उसको भी हम एक बार क्विकली रिवाइज कर लेंगे. Children, in this story there was a farmer named Kishan Lal, and he lived in a faraway land in a desert. His name is Kishan Lal. The name of the farmer is Kishan Lal, and that farmer was very kind-hearted. He always used to help poor people. So one morning he found a crow on the doormat of his house. एक सुबह उसे अपने डोरमैट पर एक क्रो गिरा हुआ मिला. So he gently picked up the crow and gave some water. उसने उस क्रो को उठाया और उसको थोड़ा पानी पिलाया. Because the crow was thirsty and the crow had been flying for miles without water. बिना पानी को वो उड़ रहा था, इसलिए वो थक कर गिर गया था. तो किशन लाल ने उसको पानी पिलाया. And he also prepared a small bed for the crow in a shoe box. एक शू बॉक्स लिया, जूते का खाली डब्बा जो होता है उसको लिया, और उसमें उसने क्रो के लिए एक अच्छा सा छोटा सा बेड भी बना दिया, so that the crow can rest. This proves that Kishan Lal was really a gentleman. He was really a kind-hearted person. Soon the crow recovered, he became well, and he also became Kishan Lal's friend. वो किशन लाल का फ्रेंड बन गया, उसके कंधे पर बैठकर हमेशा उसके साथ वो रहता था. They both became good friends. The villagers, Kishan Lal's other friend, they often make fun of Kishan Lal for his newfound friend. उसके जो बाकी फ्रेंड्स थे वो किशन लाल का मजाक उड़ाते थे क्योंकि उसने एक क्रो को अपना फ्रेंड बनाया था. लेकिन किशन लाल ने इस पे ध्यान नहीं दिया. He used to love his pet and he named him Blackie. उसने उस क्रो का नाम रखा ब्लैकी. फिर कुछ दिन के बाद क्या हुआ, एक बार अंधेरी रात थी. इट वॉज अ डार्क नाइट. सम थीव्स एंटर्ड किशन लाल्स फार्म. कुछ जो चोर थे वो किशन लाल के फार्म में घुस गए. सब लोग तो सो रहे थे, एवरीबडी वाज स्लीपिंग. दिस क्रो ब्लैकी, ही सॉ द थीव्स एंटरिंग द फार्म. सो ही स्टार्टेड काउइंग लाउडली. उसने जोर जोर से काव काव करना शुरू कर दिया, टू रेज एन अलार्म, टू वार्न अबाउट द डेंजर. Everybody woke up. Kishan Lal and his neighbors woke up and they caught the thief and took them to the police station. But what happened? One of the thieves, he hid behind freshly cut crops. उसमें जितने चोर थे उनमें से एक चोर था वो छुप गया. वो वहां पे कटे हुए क्रॉप्स रखे थे, उनके पीछे वो छुप गया. So Kishan Lal and his neighbors could not see him. The thief, he waited for the next night. He was very angry with Kishan Lal because Kishan Lal took his friends to the police station. वो चोर बहुत गुस्सा था किशन लाल से. क्योंकि किशन लाल ने उसके फ्रेंड्स को चोर को पुलिस स्टेशन पकड़वा दिया था, पुलिस को पकड़वा दिया था. So he wanted to take revenge. वो बदला लेना चाहता था. तो उसने क्या किया, वो रात भर वहां बैठा रहा. एंड देन एट नाइट ही crept inside the farm. He decided to burn the crops of Kishan Lal's farm. किशन लाल के फार्म पे जो क्रॉप्स थे उसको उसने जलाने को सोचा. He decided to set fire to the crops on Kishan Lal's farm.
एंड विद दिस मोटिव, इसके साथ वो क्या किया, वो घुसा रात को उस फार्म जहां उसके क्रॉप्स रखे थे, एंड ही वॉज होल्डिंग अ फ्लेमिंग टॉर्च इन हिज हैंड, और उसके हाथ में जलता हुआ एक लकड़ी मशाल थी, किस लिए, टू बर्न द क्रॉप्स. नाउ Blackie, he was very much alert. He saw the thief. उसने चोर को देख लिया घुसते हुए, and he immediately realized कि क्या होने वाला. उसने एकदम समझ लिया था कि अब क्या होने वाला है. And he also understood that by the time he will raise alarm, by the time he will shout, he will make noise, and Kishan Lal would woke up and come out, it would be too late. बहुत देर हो चुकी होगी. क्यों? क्योंकि जब तक वो चिल्लाएगा, काव काव करेगा और किशन लाल बाहर निकलेगा, और तब तक में तो जो चोर है ये तो फसल में आग लगा चुका होगा. इट विल बी टू लेट. सो व्हाट ही डिसाइडेड, ही डिड नॉट केयर फॉर हिज लाइफ. ही डिसाइडेड टू डिस्ट्रैक्ट द थीव्स अटेंशन. उसने सोचा कि वो जो चोर है उसका ध्यान थोड़ा भटकाए, मतलब आग जलाने से उसका ध्यान जो है वो डिस्ट्रैक्ट करे. सो ही स्टार्टेड पैकिंग एट द thief. उसने चोर को चोंच मारना शुरू कर दी. He continuously pecked at the thief. So in the beginning, what happened? The thief showed him. उसको हुश करके भगाया. The thief showed him, but later the thief was tired, and then he decided to shoot. He decided to shoot the crow. And the moment he shot his gun, the noise of the shot woke Kishan Lal and others. This crow got hurt. उसको थोड़ा गोली लग गई, मरा नहीं, लेकिन उसको he got hurt. But everybody woke up and caught the thief and took him to the police station. This thief was also caught. Now everybody surrounded the crow, Blackie, and everybody was praising Blackie for his bravery. सब उसकी तारीफ कर रहे थे, and they were helping Kishan Lal in bandaging the wings of crow. उसके पंख में जो चोट लग गई थी, he was hurt, so everybody was helping Kishan Lal to bandage its wings, and everybody was praising also. Later, the town gave him rewarded him with special bravery medal. The town rewarded him with special bravery medal, which the crow wore very proudly, and he continued doing good works. So this was the story. This was the story of the chapter which we studied. हमने इसको स्टोरी जान लिया. हमने इसके कॉम्प्रीहेंशन किया था. कॉम्प्रीहेंशन में हमने क्या किया था, पहला जो हमारा ए पार्ट था उसमें मैचिंग था. मैचिंग था मतलब वर्ड्स को उसके मीनिंग के साथ मैच करना था, विच वी डिड. एक बार हम इसको क्विकली पढ़ लेते हैं. यू कैन ओपन पेज नंबर 78. पेज नंबर 78 पे जो वर्ड मीनिंग है वो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं. पहला क्या है, हाइड, जिसका मतलब होता है आउट ऑफ साइट. सेकेंड वर्ड इज डिस्ट्रैक्ट. डिस्ट्रैक्ट का मतलब होता है टू डिस्टर्ब वंस अटेंशन. टू डिस्टर्ब वंस अटेंशन. देन नेक्स्ट वर्ड इज काव. काव इज द साउंड ऑफ द क्रो. काव, काव का जो वो करता है ना, काव. फोर्थ वर्ड इज वैलियंट, विच मीन्स ब्रेव, करेजियस. Then fifth one is recover, which means to get well again. To get well again. Sixth one is raise an alarm, and it means warn of danger. खतरे से किसी को आगाह करना, किसी को warn करना. And seventh word is worn out, which means tired, थका होना. This we have already done. Student, second part is complete the following sentences. This also we have completed. So let's revise it quickly. Kishan Lal gave the crow some water because. Now children, you have to complete these sentences which we have done. I have given the written work also, so I will revise it quickly. Kishan Lal gave the crow some water because the crow was thirsty. Because the crow was thirsty. Number 2 is villagers often made fun of his new friend because the new friend was a crow. Because the new friend was a crow or a bird, you can write. Number 3, the farmers could not see one thief. The farmers could not see one thief because he was hiding behind the freshly cut crops. Because he was hiding behind the freshly cut crops. Number 4, angry with Kishan Lal, the thief decided to
Angry with Kishan Lal, the thief decided to set fire to the crops of Kishan Lal's farm. The thief decided to set fire to the crops on Kishan Lal's farm. Number 5, for his bravery, Blackie was rewarded with special bravery medal. Okay, so this was completing the sentence. The next one is think and answer. Part C of the comprehension is think and answer. And the question is, do you think that Blackie was brave? Give reason for your answer. The question is, do you think Blackie was brave? Give reason for your answer. Children, this also we have done. I have explained you the answer also. So I will just revise it for you. Yes, Blackie was brave because first of all, he did not care for his life, and he bravely faced the thief. He continuously pecked the thief to distract his attention, and he did not care for his life. Okay, he faced the thief bravely. This proves that Blackie was brave. Now coming to the exercise for today's video. जो आज का हमारा वीडियो है उसका हम एक्सरसाइज करेंगे, एंड इट इज ग्रामर ग्ली. इसको हम करेंगे और हमारा टॉपिक है ग्रामर ग्ली. ओके, पेज नंबर 79. पेज 79. Okay, page 79, grammar glee. Children, this grammar portion is related to prepositions, जिसको हम position word भी कहते हैं. Prepositions. और position word. Today we will study prepositions or position word. Now children, what is preposition? Yeah, what are preposition? Yeah, what do we mean by position word? Position word कहते किसको हैं? Position word as the name suggests. ये आप जूनियर क्लास में हो इसलिए हम इसको position words बोल रहे हैं, but actually it is called prepositions only. इसको prepositions ही बोलते हैं. It's called prepositions, and for you it is position words. The name suggests position. Position का मतलब क्या होता है? किसी का place. Okay, so the preposition actually are the words which tell us the position of person, position of thing, position of animal in a sentence. Okay, position words are words which tell us the position of person, thing, animal, words, anything in a sentence. Okay, किसी भी सेंटेंस में पर्सन का या प्ले या एनिमल का या किसी थिंग का कहाँ क्या पोजीशन है, कहाँ पर वो है. इट टेल्स सेंटेंस में उसकी पोजीशन क्या है, किस जगह पर है. पोजीशन मतलब स्थान, उसका प्लेस कहाँ पर है. दैट इट टेल्स. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड पोजीशन वर्ड. लेट मी राइट इट फॉर यू. Words which tell us, let me write the book here. यहाँ पे book रख देते हैं so that it will be easy for me to write. Which tell us the place or position. Tell us the place or position of people, animals, and things in a sentence.
Got it? What is the meaning of preposition? Preposition means words which tell us the place or position of people, animal और things. People, animal and things in a sentence. किसी सेंटेंस में, किसी वाक्य में जो कोई भी पर्सन है या एनिमल है या थिंग है, उसका प्लेस क्या है, उसकी पोजीशन क्या है, दैट इट टेल्स. प्रपोजिशन टेल्स अस द प्लेस ऑफ द पर्सन और द प्लेस ऑफ थिंग और द प्लेस ऑफ एनिमल इन अ सेंटेंस. आपने इसे अपने छोटी क्लास में व्हेन यू वर इन यूकेजी और एलकेजी आपने ये पढ़ा होगा, बट नॉट यू मस्ट नॉट बी फैमिलियर विद दीज वर्ड्स. ये आपको वर्ड्स नहीं पता है लेकिन आपने इसे पढ़ा है. इन, ऑन आपने पढ़ा है ना, ऑन द टेबल, इन द कप, ऑन द टब, इन द टब. ये ऑन, इन, दीज आर ऑल प्रपोजिशंस. ये बता रहे हैं कि प्लेस क्या है, वो जो थिंग है उसकी प्लेस क्या है, उस एनिमल की प्लेस क्या है ना. जब हम बोलते हैं, let me read this and I will rub so that I can give you some example. Like words which tell us the place or position of people, animal and things. So, and they tell us in a sentence or phrase, so they are called prepositions or position word. Now I will give you some example. पहले आपको मैं example देखूं जो आपने छोटी क्लास में when you were in UKG और LKG और क्लास 1 तो आपने जो पढ़ा होगा उसका एक छोटा सा हम एग्जाम्पल दे देते हैं. सपोज ये है हमारा ये दिस इज अ टब. एक मैंने टब बनाया और इसके अंदर मैंने बनाया ये एक मग. नाउ वेयर इज द मग? मग कहां पर है? आप इस फोटो को देख रहे हो, ये पिक्चर देख रहे हो, तो यू कैन टेल मी वेयर इज द मग. ये मग किधर है? ये टब के कहां पर है? व्हाट इज द प्लेस ऑफ दिस मग? इस मग का क्या प्लेस है? क्या प्लेस है? द मग इज इन द टब, है ना. द मग इज इन द टब. ओके, सो इस मग की पोजीशन क्या है? इन. इसका प्लेस क्या है? इन. So it is the word in is telling the position of mug. This word in is telling the position of mug in the tub. तो इससे क्या पता चलता है? आपका पोजीशन पता चली, प्लेस पता चली मग का. सो इन इज प्रपोजिशन. अब इसी को थोड़ा इसी पिक्चर में अगर मैं एक ये बना देती हूँ, एक टेबल बना देती हूँ रफ सा. नाउ अब ये टब कहां पर है? वेयर इज द टब? टब कहां पर है? ऑन द टेबल. टब इज ऑन द टेबल. ठीक है, द टब इज ऑन द टेबल. ओके, नाउ दिस ऑन, ये जो ऑन है ये क्या बता रहा है? ये टब का पोजीशन बता रहा है. टब कहां पर है? ऑन द टेबल. टब इज ऑन द टेबल. इस टेबल के ऊपर है. ओके, दिस वर्ड ऑन इज प्रपोजिशन. इट इज पोजिशन वर्ड. इट इज टेलिंग द पोजिशन ऑफ टब. ठीक है, अब इसी में हम आगे कंटिन्यू कर लेते हैं. हम यहाँ पर एक चूहा बना देते हैं. ठीक है, लेट्स मेक अ. नाउ दिस रैट इज अंडर द टेबल. ये जो रैट है टेबल के नीचे है, इट इज अंडर. तो वी कैन से द रैट इज अंडर द टेबल. द रैट इज अंडर द टेबल. ओके, नाउ रैट का पोजीशन क्या है? टेबल के नीचे. अंडर. द रैट इज अंडर द टेबल. The rat is under the table. टेबल के नीचे है रैट, है ना. अच्छा, अब हम यहां पर सपोज इधर मैंने एक फैन बना दिया. ठीक है, इट्स अ रफ ड्राइंग और ये फैन चल रहा है. ठीक है, अब ये फैन टब कहां पर है? वेयर इज द फैन? ओवर द टब.
द फैन इज ओवर द टब। टब के ऊपर है ये, या ओवर द टेबल भी बोल सकते हो। द फैन इज ओवर द टब। फैन कहाँ है? टब के ऊपर है। द फैन इज ओवर द टब। पोजीशन ऑफ फैन क्या है? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ फैन? ओवर द टब। टब के ऊपर है। इट इज ओवर द टब। ओके, तो ऑल दीज वर्ड्स इन, ऑन, अंडर, ओवर, दीज आर ऑल prepositions। इनको हम बोलते हैं prepositions या पोजीशन वर्ड्स। ओके, आप चाहे तो यहां कुछ बना लिया तो हम बोल देंगे एट द साइड ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड। ठीक है, यहां पर अगर हमने कुछ बना दिया तो वी कैन से बिहाइंड। यहां पे अगर क्लॉक बना देते हैं, ओके, तो द क्लॉक इज बिहाइंड द टब या बिहाइंड द टेबल। ओके, so these all things, in, on, under, over, these are telling the place of the things or animal, so they are called position word or preposition। position बता रही है, sentence का position बता रहे हैं ये सारे words, so they are called position words या prepositions। ठीक है, आई होप ये पिक्चर जो मैंने पिक्चर दिया उससे आपको प्रपोजिशन या पोजीशन वर्ड का एक आइडिया मिल गया कि व्हाट आर एक्चुअली पोजीशन वर्ड्स। दे टेल अस द पोजीशन, दे टेल अस द प्लेस। ओके, चिल्ड्रन, देयर आर मेनी पोजीशन वर्ड। बहुत सारे पोजीशन वर्ड है, क्योंकि हमेशा जो हमारे आसपास जो थिंग्स होते हैं उनका कोई ना कोई पोजीशन होता है। प्रेजेंटली आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा, इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, द बोर्ड इज बिहाइंड मी। आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, द बोर्ड इज बिहाइंड मी, मेरे पीछे है। द बोर्ड इज बिहाइंड मी। ओके, सो इन दिस वे, इन फ्रंट ऑफ एंड बिहाइंड, both are preposition, both are position word, they are telling the position। okay, my position is in front of camera and the position of board is behind me, वो मेरे पीछे है। ठीक है, I am between the camera and board, मैं कैमरा और बोर्ड के बीच में हूं, तो my position is between the camera and the board, so my position is between। okay, got it? The chalk is in my hand, in, position of chalk is in my hand। okay, the chalk is on my hand, chalk is in my hand। okay, chalk, position of chalk आपको समझ में आ गया? okay, now let's do the exercise। अब आपके बुक के हम एक्सरसाइज पर आते हैं। आफ्टर एक्सप्लेनिंग द पोजीशन वर्ड we will do the exercise। now what you have to do, underline the prepositions in the following sentences। underline the prepositions in the following sentences। the first one has been done for you। एक आपके लिए पहले से किया हुआ है और बाकी आपको खुद से करना है। you have to underline, आपको अंडरलाइन करना है। जहां भी आपको prepositions दिख रहा है, पोजीशन वर्ड दिख रहा है, that you have to underline। okay, वो हम अभी कर लेते हैं। आई विल राइट द वर्ड फॉर यू, सेंटेंस फॉर यू। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। फर्स्ट वर्ड इज द कैट स्लेप्ट ऑन द मैट। दिस इज ऑलरेडी डन। आई विल राइट दैट द कैट स्लेप्ट ऑन द मैट। Now this is already done। okay, in your book you can see page number 79। the cat slept on the mat। now position of cat, यहाँ पे ये जो cat है इसकी पोजीशन बताई गई है। cat की पोजीशन क्या है? cat जो है उसकी पोजीशन मैट से रिलेटेड है ना? कहाँ पर है? cat जो है मैट के ऊपर है, on the mat। position of cat is
ऑन द मैट। उसका प्लेस क्या है कैट का? कैट का प्लेस है ऑन द मैट, मैट के ऊपर। कैट का पोजीशन कहाँ है? मैट के ऊपर है, ठीक है, मैट के ऊपर है वो कैट। क्लियर? I hope the first one is clear to you, which is already done. The position of cat is on the mat. The cat is on the mat. Now second one. The butterflies butterfly. The butterfly flies over the bird bath and around the flowers. Now read this sentence. The butterfly flies over the bird bath and around the flowers. अब ये पोजीशन, बटरफ्लाई की पोजीशन हमको देखनी है, उसका प्लेस देखना है। बटरफ्लाई कहाँ पर है? बटरफ्लाई जो है वो इट फ्लाइज ओवर। एक पोजीशन क्या है उसकी? ओवर। किसके ऊपर है वो? ओवर मतलब see there is difference between on and over. This is very important. On और over में बहुत फर्क होता है। This is on. ये चौक अगर मैं अपने हाथ पे रखती हूँ तो it is on my hand. Okay, the chalk is on my hand. But अगर ऐसे रखती हूँ it is over my hand. It is not touching my hand. It is over my hand. In the same way, the butterfly flies over the bird bath. वो bird bath के ऊपर fly कर रही है और कहाँ कर रही है? Around the flowers. और flowers के चारों तरफ, उसके अगल बगल। ओके, सो द पोजिशन ऑफ बटरफ्लाई इज इट फ्लाइज ओवर द बर्ड बाथ एंड अराउंड द फ्लावर्स। फ्लावर्स के भी चारों तरफ है एंड ओवर द बर्ड बाथ। तो ये अराउंड एंड ओवर, दीज आर टू पोजिशन वर्ड्स। ओके, नेक्स्ट वन इज number 3. The boy hides his book under the pillow. Okay, the boy hides his book under the pillow. यहां पर किसकी पोजीशन हमें देखनी है? बॉय की? नो। बुक की? यस। हियर वी हैव टू सी द पोजीशन ऑफ बुक। बॉय का पोजीशन नहीं देखना, उसकी बुक का पोजीशन। कैसे? द बॉय हाइड्स, वो छुपा रहा है, लड़का छुपा रहा है। द बॉय हाइड्स क्या छुपा रहा है? हिज बुक। कहाँ छुपा रहा है? अंडर द पिलो। तो बुक कहाँ है? अंडर द पिलो। ये पिलो है और उसके नीचे है। ओके, सो ही हाइड्स द बुक अंडर द पिलो। तो बुक की पोजीशन क्या है? अंडर द पिलो, पिलो के नीचे है। बुक कहाँ है? पिलो के नीचे है, अंडर। ओके, अंडर द पिलो। सो द बॉय हाइड्स हिज बुक अंडर द पिलो। Position of book is under. Next one is Arun, A-R-U-N. Arun sat in front of Neha and behind Meenu. Okay, now here हमें किसकी पोजीशन देखनी है? Here we have to see the position of अरुण। अरुण की पोजीशन हमको देखनी है। ओके, अरुण का पोजीशन हमें चेक करना है, कहाँ पर है अरुण का प्लेस। अरुण सैट, अरुण कहाँ बैठा है? इन फ्रंट ऑफ नेहा, नेहा के सामने। इन फ्रंट ऑफ, द बुक इज इन
front of me. So Arun sat in front of, नेहा के आगे, किसके आगे? नेहा के आगे, in front of नेहा, and behind मीनू, और मीनू के पीछे, मीनू के पीछे है और नेहा के आगे है, मतलब उन दोनों के बीच में, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? अरुण का पोजीशन क्या है? इन फ्रंट ऑफ नेहा एंड बिहाइंड मीनू, नेहा के आगे और मीनू के पीछे, ठीक है। अरुण का क्या है पोजीशन? नेहा के आगे और मीनू के पीछे। समझ में आया उसकी पोजीशन? ओके, His position is in front of Neha and behind मीनू। तो हम ये भी बोल सकते हैं अरुण सैट इन बिटवीन नेहा एंड मीनू, लेकिन यहाँ पर दो पोजीशन हम ऑलरेडी बता चुके हैं, इन फ्रंट ऑफ नेहा एंड बिहाइंड मीनू। सो लेट मी ड्रॉप दिस। नेक्स्ट वन इज हमारा है नंबर 5। नंबर 5 इज the bird lays eggs in the nest, the bird lays eggs in the nest। अब ये बर्ड जो है उनके एग्स का पोजीशन बताना है, बर्ड का पोजीशन नहीं बताना है, उसके एग्स वो कहाँ अंडे देती है? इन द नेस्ट, नेस्ट के अंदर। ओके, बर्ड्स एग्स कहाँ देती है? नेस्ट के अंदर, इन द नेस्ट। ओके, नंबर 6, द NAUGHEY, the naughty children, CHILDREN, the naughty children throw, THROW is throw stones, STONES, stones into the pond, okay। Now here the naughty children, अभी इसमें बच्चों का पोजीशन नहीं है, किसका पोजीशन है? The naughty children throw stones, stones को कहां पर फेंक रहे हैं वो, ठीक है, stones को कहां पर फेंक रहे हैं? into the pond। जो बदमाश बच्चे हैं, जो naughty बच्चे हैं, वो स्टोन को कहां फेंक रहे हैं, किसमें डाल रहे हैं? into the pond। stones की पोजीशन क्या है? into the pond, ओके। stones को वो कहां फेंक रहे हैं? pond में डाल रहे हैं, तो into is the position, pond में डाल रहे हैं, ठीक है। तो stones का पोजीशन क्या है? into the pond, the place of stones is into the pond। so children, ये जो एक्सरसाइज थी आपकी प्रपोजिशन की, दिस इज कंप्लीटेड, ये यहाँ पे कंप्लीट हो गई, ठीक है। आपका जो मैंने ये प्रपोजिशन वाला ये मैंने कंप्लीट करा दिया है। दिस यू हैव टू डू इन योर नोटबुक, आपको नोटबुक में अपना करना ही है। आई होप दिस यू विल बी एबल टू डू योर सेल्फ, अब आप खुद से भी कर पाएंगे। सिंस द word preposition, the position word is clear to you, you will be able to do this on your own, आप कर पाओगे, मुझे पता है। But in case if you have any doubt, you are free to ask me, I am always there for you। so do this, practice this and clear your doubts if you have any, okay। so we'll do rest of the exercise in our next video। thank you।